Good morning students, this is your value education book of class 1. In previous class we have done the new words of lesson 3. Name of the lesson Little Chick Chick. Okay students, and in this lesson we are going to teach a story about a red hen. Look at here, red hen and a baby named Chick Chick. What is the name of his baby? Chick Chick. Okay. Now everyone open your book. Page number 16. Well, 16. Let's start the lesson. Lesson number 3. Little Chick Chick. Okay. Everyone put on the fingers on your book. 4. Explain to children the meaning of the word obedience and its importance. Highlight the fact that it means listening to the elders with respect. They may feel, but in the long run, it is very helpful. Enable them to appreciate the fact that the best way through which they can make their parents happy is by obeying them. Focus on the fact the ultimate aim of all parents is the welfare of their children. Okay, in this lesson we are going to tell the meaning of the word obedience and its importance. So that student, we must obey our elders and we listen to our elders and respect them. Okay, obeying elder means doing what they tell you to do. ओके वो हमें क्या कहते हैं और हम वो क्या what they tell you to do, वो हमें क्या बोलते हैं करने के लिए, हमें उसको लिसन करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए. ओके, अगर हम अपने पेरेंट्स को ओबे करेंगे तो पेरेंट्स क्या होंगे? हैप्पी होंगे ना, क्योंकि वो हमारे लिए क्या, उनका एम क्या होता है? द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल पेरेंट इज द वेलफेयर ऑफ देयर चिल्ड्रन. वो हमारे क्या होते हैं? हमारे बेटर के लिए ही हमको स्पीक करेंगे और हमें उनको फॉलो करना चाहिए. एंड वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स. ओके, ऑब्जेक्टिव्स. लिस्ट डाउन different ways in which they can obey their parents. Appreciate the fact that if they obey their elders, they would be safe. Understand that disobeying elders may put them into problems that are difficult to resolve. Focus on the fact that elders know better and it is best for children to obey as they are too young to understand about their well-being. Identify rules that they must फॉलो एट होम एंड एट स्कूल. ओके, हमें सारे जैसे कि वी शुड ऑल्सो ओबे अवर टीचर्स, है ना, हमें टीचर्स का भी ओबे करना चाहिए. तो हमें सारे जो भी रूल्स होते हैं ओबीडियंस के हमें स्कूल और होम दोनों में फॉलो करने चाहिए. ओके, जो अगर हम अपने एल्डर्स को ओबे करेंगे तो हम क्या होंगे? सेफ होंगे. ओके, इफ दे ओबे देयर एल्डर्स तो दे वुड बी सेफ. वार्मिंग अप. Obeying elder means doing what they tell you to do. It is your safety and betterment. Disobeying elders can put you in a situation that may be quite painful or difficult. अगर हम अपने elders का disobey करेंगे, उनको listen नहीं करेंगे, है ना, respect नहीं करेंगे, तो हम कैसे situation में फंस जाएंगे? हम difficult situation में आ जाएंगे. ओके, तो इसलिए we should obey our elders. Now it's story time. Red hen had a little baby. His name was Chick Chick. Okay, red hen के little baby का क्या name था? Chick Chick. Chick Chick was very naughty. Chick Chick कैसा था? Very naughty था. Okay, वो क्या करता था? वो listen नहीं करता था मम्मी को. मम्मी जो कुछ भी कहती थी उसको listen नहीं करता. वो कैसा था? Naughty था. Often Red Hen used to tell Chick Chick to obey, but he did
डिड नॉट लिसन। उसकी रेड हैंड बोलती थी उसको ओबे करने का, लेकिन वो क्या करता था, लिसन नहीं करता था, बिकॉज लिटिल चिक चिक वॉज वेरी नॉटी। One day, Red Hen was teaching Chick Chick how to drink water from the bowl. Okay, look at here. This is Red Hen and his baby. Baby का क्या नेम है, Chick Chick. Okay, तो one day Red Hen ने उसको क्या किया, टीच किया, किस लिए, कि क्या टीच किया, कि हाउ टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द बाउल। दिस इज बाउल, उसको टीच किया कि बाउल से कैसे वाटर ड्रिंक करते हैं। ओके, शी टोल्ड चिक चिक टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द एज ऑफ द बाउल। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एज, मीन्स बॉर्डर, मिडल। उसने क्या कहा, बाउल में से वाटर ड्रिंक कैसे करना है, कहाँ पे उसको करना, स्टैंड होना है, एज ऑफ द बाउल, मिडल में। ओके, शी सेड दैट इफ चिक चिक वुड क्लाइम द बाउल ही माइट फॉल इनटू द बाउल। उसने कहा कि इसके ऊपर क्लाइम नहीं होना, इस पे यहाँ पे स्टैंड नहीं होना है, नहीं तो वो क्या होगा, फेल डाउन हो जाएगा बाउल में। ओके, he might fall into the bowl. Take a sip. Sip means, what is the meaning of sip? Drink slowly. Okay, drink slowly or a small mouthful of liquid. मतलब slowly इसको drink करना है. Then put your face up. फिर अपने face को up करना है. Then gulp it down. What is the meaning of gulp? Means swallow. फिर उसको water drink करना है. पहले टेक स्लोली उसको ड्रिंक करना है वाटर को, फिर फेस को अप करना है, देन उसको वाटर ड्रिंक को क्या करना है, पूरा पी जाना है, गल्प इट डाउन। शी सेड लिटिल चिक चिक बिगेन टू प्रैक्टिस। इसलिए वो उसको बोला था कि उसकी प्रैक्टिस क्या, बिगेन में स्टार्ट, तो उसकी प्रैक्टिस को क्या किया, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी कि उसको कैसे बाउल से वाटर ड्रिंक करना है। लुक एट हियर, ये एज ऑफ द कॉर्न, यहाँ एज पे ये स्टैंड है ना बाउल पे, और इसने अपने फेस को क्या किया है, अब ये सिप लेगी, देन फेस को अप करेगी एंड गल्प्ड इट डाउन, और वाटर ड्रिंक कर लेगी। ओके, तो उसने अपनी उसके लिटिल रेड हैंड ने क्या किया, उसको इस चीज के लिए क्या प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। Little Chick Chick began to practice. He repeated his mother words. Take a sip, put your face up and gulped it down. और जैसे जैसे उसकी मदर ने उसको बोला, उसको वो रिपीट करती गई और प्रैक्टिस करती गई। टेक अ सिप, पुट योर फेस, जो भी मदर ने वर्ड्स बोले थे उसको क्या किया, उसने रिपीट करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, सडनली समवन कॉल्ड रेड हैंड। फिर सडनली क्या हुआ, रेड हैंड को किसी ने कॉल कर दिया। शी टोल्ड चिक चिक टू प्रैक्टिस एंड नॉट टू बी नॉटी। तो उसने चिक चिक को क्या बोला कि प्रैक्टिस करो और क्या, क्योंकि वो नॉटी थी इसलिए उसको बोला कि कोई भी नॉटीनेस नहीं करना है, कोई भी शैतानी नहीं चलेगी। ओके, और आपको क्या करना है, इसको लिटिल चिक चिक को प्रैक्टिस करनी है। किस चीज की प्रैक्टिस करनी है उसको, कि हाउ टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द बाउल। लिटिल चिक चिक प्रॉमिस टू बी गुड। उसने अपनी मदर को प्रॉमिस किया, रेड हैंड को प्रॉमिस किया कि नहीं मैं क्या करूंगी, प्रैक्टिस करूंगी। ओके, एज सून एज हिज मदर लेफ्ट लिटिल चिक चिक फॉरगेट हिज प्रॉमिस। और जैसे ही उसकी मदर लेफ्ट हुई रेड हैंड, उसने जो भी मदर को प्रॉमिस किया तो उसको क्या की, भूल गई, क्योंकि वो कैसी थी, लिटिल चिक चिक वॉज वेरी नॉटी, ही डिड नॉट लिसन। He hopped on the edge of the bowl. और वो जैसे ही उसकी मदर गई, प्रॉमिस को भूल गई और क्या किया, उसके एज के ऊपर क्या होगा, जंप कर लिया उसने। लुक एट हियर, दिस इज बाउल, और वो उसके एज पे क्या हो गई है, स्टैंड हो गई है। जंप कर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होप्ड, मीन्स जंप्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होप्ड, जंप्ड at the edge of the bowl and decided to drink water। और उसने क्या डिसाइड किया कि वो डिसाइड टू ड्रिंक वाटर स्टैंडिंग ऑन द एज। वो कैसे ड्रिंक करेगी, यहाँ पे स्टैंड होके, एज ऑफ द बाउल पे स्टैंड होके वो वाटर ड्रिंक करेगी।
As Chick Chick was about to drink water, he lost his balance. और जैसे ही वो उसने water drink किया, उसका बैलेंस क्या हो गया? He lost his balance. He fell into the bowl. उसका बैलेंस क्या हो गया? Lost होते ही वो क्या हो गई? Fell down हो गई बाउल में. And he fell into the bowl of water with a loud splash. और वो water bowl के अंदर क्या हो गई? Fell down हो गई. Okay, splash means क्या होता है? What is the meaning of splash? जब हम किसी रिवर में या लेक पॉन्ड में हम जब जंप करते हैं तो जो वॉइस आती है ना, साउंड मेड बाय समथिंग फॉलिंग इनटू वाटर, उसको क्या बोलते हैं? स्प्लैश. क्या बोलते हैं बेटा? स्प्लैश. ओके, नाउ एवरीवन टर्न योर पेज. He got scared. What is the meaning of scared? Means frightened, afraid, fear. ऐसे जैसे हम कहते हो क्या, डर गई थी, scared हो गई थी. And started crying. What is the started crying for help? Okay, और वो क्या loud voice में क्या होगी? Shout करने लग गई help के लिए. Mother heard the cry and rushed back. मदर ने उसकी जो भी उसने loud voice लाउडली क्राइंग करना शुरू कर दिया ना, शाउटिंग करनी शुरू कर दी, तो किसने सुन लिया? उसकी मदर ने. एंड रश्ड बैक. ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रश्ड? रश्ड के मतलब हरी. हरी में बहुत जल्दी में उसको, जैसे उसने अपनी बेबी की लाउड वॉइस सुनी तो वो रश्ड बैक, हरी जल्दी से, मतलब क्विकली वहां से बैक कहाँ आ गई? जहाँ पे वो लिटिल बेबी का बाउल के अंदर फेल डाउन हो गया था. She found little Chick Chick inside the bowl of water. तो उसने क्या देखा? Little Chick Chick कहाँ fell down हो गया? Inside the bowl of the water. Look at here. कहाँ fell down हो गया? Bowl में. She tried to pull him out but could not. उसने ट्राई किया कि अपनी बेबी को उस बाउल से बाहर निकाल, लेकिन वो क्या हुआ? वो नहीं कर पाई. She called her friend Crane. फिर उसने अपने फ्रेंड क्रेन को कॉल किया. वो लिव नियर बाय. वो कहाँ लिव करती थी? वो नियर ही लिव करती थी. उसको कॉल किया. लुक एट हियर. लिटिल ये रेड हैन का फ्रेंड है. क्या नेम है? कौन है ये? क्रेन. ओके, द क्रेन केम फास्ट एंड पुल्ड आउट लिटिल चिक चिक. ओके, और क्रेन फास्टली आया और उसने उसको क्या किया? उसको फोर्स से लिटिल चिक चिक को अपनी लॉन्ग बीक, विद हिज लॉन्ग बीक से उसको बाउल से बाहर निकाला. लुक एट हियर, दिस इज लॉन्ग बीक, है ना? क्रेन ने अपनी लॉन्ग बीक से उसको क्या किया है? बाउल से बाहर निकाल दिया. मदर थैंक द क्रेन फॉर हेल्प. तो मदर ने अपने फ्रेंड क्रेन को थैंक यू बोला. अगर आपकी भी कोई हेल्प करता है तो आप थैंक यू बोलते हो ना, वैसे उसने भी अपने फ्रेंड को हेल्प थैंक यू बोला क्योंकि क्रेन ने उसकी हेल्प की. उसके बेबी को कहाँ से निकाला था? बाउल में से. ओके, शी वॉज वेरी एंग्री विथ लिटिल चिक चिक. अगर आप भी कोई अपनी मदर को लिसन नहीं करोगे, पेरेंट्स को लिसन नहीं करोगे, तो आपके पेरेंट्स आप पे एंग्री हो जाएंगे ना, अनहैप्पी हो जाते हैं ना. तो ऐसे रेड हैन भी अपने बेबी चिक चिक पे क्या हो गई? एंग्री हो गई कि उसने उसकी बात को लिसन नहीं किया, है ना, ओबे नहीं किया, रेस्पेक्ट नहीं किया. ओके, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. ओके, तो लिटिल चिक चिक को अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई कि मैंने अपने क्या किया? अपनी मदर को बात को लिसन नहीं किया, अपनी बात को लिसन नहीं किया. ही सेड सॉरी टू मदर. और उसने अपनी मदर को क्या स्पीक किया? सॉरी. क्या स्पीक किया? सॉरी स्पीक किया, क्योंकि उसने क्या की? मिस्टेक की थी ना, अपनी मदर को लिसन, अपनी मदर की बात को लिसन नहीं किया था, तो उसको क्या हो गया? वो डिफिकल्टी में आ गई थी ना. ही promised his mother that he always obey her. फिर उसने अपनी मदर को प्रॉमिस किया कि वो क्या करेगी? अब सब क्या करेगी? ओबे करेगी सबको, और अपनी मदर को क्या करेगी? ओबे करेगी, उनको लिसन करेगी, जो भी मदर बोलेगी उसको क्या करेगी? लिसन करेगी एंड फॉलो करेगी. ओके, तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? ऑलवेज ओबे आवर एल्डर्स. हमें हमेशा अपने एल्डर्स का क्या करना चाहिए? ओबे करना चाहिए. ओके, now summing up, our elders make rules for us because they know better than us. They are concerned about our well-being
and don't want us to face any problem. They always want us to be safe and happy. We may not like listening to them in certain situation, but before disobeying, we must think why they are telling us to obey. Think what may happen if we disobey. Then maybe we would not want to disobey. तो हमें अपने एल्डर्स को क्या करना चाहिए? एल्डर्स को ओबे करना चाहिए, उनके रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बेटर के लिए सोचते हैं, है ना. अगर हम उनके ओबे नहीं करेंगे तो क्या होंगे? तो हम कोई भी डिफिकल्टी को फेस करना पड़ेगा हमें, है ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमेशा हम कैसे रहें. दे ऑलवेज वांट अस टू बी सेफ एंड हैप्पी, ताकि हम सेफ भी रहे और हैप्पी भी रहे. इसलिए हमें हमेशा अपने वी शुड ओबे आवर elders. Okay students, I hope you will enjoy this story. Thank you.